السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج کا بڑے زبردست انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے تہجد میں اٹھنے سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, تہجد کی امپورٹینس, قیام اللیل اور ساری چیزیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے اگلے 2-3 دن بھی پھر اس کو کنٹینیو کریں گے تاکہ کسی حد تک سمجھ سکیں اور موٹیویٹیڈ ہو جائیں اور تہجد میں جاگنے کو ذرا ریگولر کر لیں انشاءاللہ. جیسے کہ ہم آگے دیکھتے ہیں قم فانذر سورۃ المدثر میں ہے نا, قم فانذر, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ خبردار کرنا شروع کریں. تو وہ آسان نہیں ہوگا, یہ بڑی بھاری چیز ہے جو آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. قرآن کو فرمایا نا کہ قرآن کے بارے میں نا وما ہوا بالہزل, تم نے اس کو معمولی کام سمجھا ہوا ہے, معمولی کلام سمجھا ہوا ہے. یہ بڑا محنت طلب کلام ہے. اس لیے اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اب آپ رات کو قیام کیا کریں تاکہ آپ کو چارج ملے. اور اس کے لیے ترتیل سے قرآن پڑھیں. ابن مسعود فرماتے ہیں جس طرح تم جلدی جلدی کھجوریں پھینکتے ہو یا بال کاٹتے ہو, یہ بال بھی کاٹتے ہیں نا تو کینچی سے آپ دیکھتے ہیں بال گرتے چلے جاتے ہیں, اس طرح قرآن کو نہ پڑھو. ٹھیک ہے, بلکہ جب کوئی اس میں کوئی نقطہ ایسا آ جائے, نادر نقطہ, تو ٹھہر جاؤ, اپنے دل کو اس سے متحرک کرو. اپنی یعنی دل میں وہ بات آنی چاہیے, دل کے اندر وہ بات داخل ہونی چاہیے کہ کیا میں پڑھ رہی ہوں. اور تم میں سے کسی ایک کا غم یہ نہ ہو کہ سورت ختم کرنی ہے, نہیں بس دیکھتے رہیں کتنے پیج رہ گئے, کتنا سپارہ رہ گیا ہے, کب ختم ہونا ہے. یہ جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہ کرو. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت انسان اس کلام کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, محبت کرنا پسند کرتا ہے, اس کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے. قرآن کی تلاوت دیکھ کے کرنی چاہیے. دیکھ کے آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں اور اپنے اندر جذب کریں اور محبت سے پڑھیں تاکہ اس کی تاثیر ہو, اس کا اثر دل پہ آنا چاہیے. ایک دفعہ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی حضرت حسن بصری نے اس کو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا, رو رہا ہے, تو فرمایا یہ ہے ترتیل سے پڑھنا. یعنی انسان کے دل میں تو اترے, اس کو پتا تو چل رہا ہو کہ میں نے کیا پڑھا, میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک کام ہے جو انسان جب کرتا ہے تو پھر اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اور ہر دور میں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کو اٹھنا یا اشد وطئا, یہ بڑا شدید ہے کچلنے میں. کس کو کچلنے میں؟ نفس کو. نفس اس سے قابو میں آتا ہے, اس سے کچلا جاتا ہے. نفس تو کہتا ہے نا سو جاؤ, مزہ آ رہا ہے, گرمی ہے تو اے سی چل رہا ہے, مزہ ہے. اب کون بستر سے اٹھے, نرم بستر سے, پھر اپنے منہ کے اوپر پانی ڈالے, پھر کھڑا ہو جائے. یہ تو نفس کو اچھا نہیں لگتا. تو نفس تو کہتا ہے سویا رہے. وہ پتہ ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان بستر پر جاتا ہے تو سونے کے لیے, تو شیطان اس کی گدی میں 3 گریں لگا دیتا ہے. گدی کون سی چیز جگہ ہوتی ہے؟ یہ جہاں پہ ہم پیچھے چٹیاں بناتے ہیں, یہ گدی ہے. یہاں پہ 3 گریں لگا دیتا ہے, کہتا ہے سو جا سو جا, ابھی رات بہت پڑی ہوئی ہے. جب انسان جاگتا ہے وہ کہتا ہے سو جا بہت رات پڑی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا, ہم جس وقت اگر رات کو آنکھ کھل بھی جائے تو بستر میں ہی ٹاس کرتے رہیں گے, ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں, ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں, لیکن اٹھنا نہیں ہے ہم نے. کبھی اٹھ جاتے ہیں, باتھ روم چلے جائیں گے, لیکن پھر آ کے بستر پہ لیٹ جائیں گے, وضو نہیں کرنا پھر. اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بستر پہ لیٹے لیٹے اب نیند نہیں آ رہی تو ساتھ سے فون پڑا ہوا ہے, ساتھ سے فون اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا, چلو ٹیکسٹ ہی دیکھ لوں کس کے آئے میں, چلو اوورسیز کال ہی کر لوں, وہاں پہ تو دن ہوگا اس وقت. وہ کیونکہ شیطان کہتا ہے سو جا ابھی رات بہت پڑی. اب جب اس وقت فون اٹھا کے سب کے ٹیکسٹ چیک کر لیے,
दो चार इधर उधर कॉल्स कर ली, फिर भी ये तौफीक नहीं होती कि हम उठें और वुजू कर लें, क्योंकि शैतान मुसलसल थपकी दिए जाता है। फिर अगर वो उठ जाता है तो एक गिरा खुल जाती है, जो एक नॉट लगाई हुई थी उसने 3 लगाई थी ना, एक खुल गई। अब एक तो खुल गई, अगर आप बाथरूम करके वापस आके सो गए तो बस खत्म मामला। लेकिन अगर वुजू कर लिया तो फिर सेकंड गिरा खुल गई, और फिर आके अगर मुसल्ले पे खड़े हो गए तो तीसरी गिरा भी खुल गई। इस तरह से शैतान करता है, जैसे समझ लें कि रस्सियों में इंसान को जकड़ दिया हो ना, कि उसके लिए उठना इतना मुश्किल हो जाता है कि जैसे मुझे किसी ने बांधा हुआ है। ये इंसान इधर उधर होता है, तहज्जुद का ख्याल आ भी जाए तो सोचता है ऐसा है कि मैं कल पढ़ लूंगी, आज नहीं, आज मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, काम भी बहुत है सुबह। कभी ये ख्याल आता है रात को सही नींद नहीं हुई। अब चाहे बिस्तर के अंदर, बाज दफा तो ऐसा होता है घंटों गुजर जाते हैं, हम घड़ी देखते रहते हैं इतने टाइम से मैं जागी हुई, लेकिन उठने की तौफीक नहीं होती, क्योंकि शैतान सुलाए जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने जो अपने प्यारे हैं ना, उनकी जो तारीफ फरमाई है कुरान में, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात का क़याम जरूर करो, वो तुमसे पहले के नेक लोगों की आदत थी और तुम्हारे रब के कुर्ब का बायस है और गुनाहों की बख्शिश का और गुनाह से रोकने वाला। कितने फायदे पता चले। ये नेक लोगों की आदत थी, जितने अंबिया जितने नेक लोग गुजरे हैं ना, रात का क़याम वो जरूर करते थे। अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि हम नेक हैं लेकिन हम रात का क़याम नहीं करते, तो एक तो शर्त पूरी ही नहीं हुई। और वो तुम्हारे रब के कुर्ब का बायस है, अल्लाह ताला को कुर्ब मिलता है इससे, गुनाहों की बख्शिश होती है, गुनाह से इंसान रुक पाता है, तो पिछले गुनाह भी मिटने का सबब है और मजीद गुनाहों से बचने की ताकत भी पैदा होती है। हजरत हसन बसरी ने कहा कि मैंने आधी रात की नमाज से ज्यादा सख्त कोई चीज नहीं देखी। अशद्दु वता जो है ना, सख्त चीज, नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, इसको कुचलने के लिए। तो किसी ने पूछा क्या वजह है तहज्जुद गुजारों के चेहरे बड़े खूबसूरत लगते हैं? तो फरमाया वो अल्लाह के साथ तन्हाई में होते हैं रातों को, तो अल्लाह उनको अपने नूर का लिबास पहनाता है, यानी उनके चेहरे नूरानी हो जाते हैं। अल्लाह ताला नूर उनके चेहरों के ऊपर कर देता है, ये चेहरे मुनव्वर होते हैं। तो ठीक है, ये मुश्किल चीज है, लेकिन अल्लाह ताला जिसके लिए आसान फरमा दे। इसके लिए कुछ चीजें तो ये हैं कि इंसान की जो हेल्प करती हैं, इंसान कम खाए कम पिए, इतना ना खा ले कि रात को बस सोता ही रहे, क्योंकि जब इंसान खाता ज्यादा है तो नींद भी ज्यादा आती है। फिर ये कि रात को टाइम पे सोए। अब हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारे यहाँ तो अब रातों की जो दावतें हैं माशाल्लाह, अब शादियों को तो छोड़े ही, वो तो बिल्कुल ही फजर ही कर देते हैं, लोगों को सजा देते हैं कि आप बैठे रहो जब तक कि आप हमारा फंक्शन ना देख लो। मैं एक जगह भी आप मुझे बता दें, कहीं ये तजर्बा कोई करके देखे, लोगों को आते ही खाना खिला दें, मैं फिर उसके बाद देखूंगी कितने लोग बैठते हैं आपका फंक्शन देखने की। क्योंकि लोग लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या कोई कर रहा है। हमने उनको सजा से बिठाया होता है कि आपकी सजा है, अगर खाना खाना है तो आपको बैठना पड़ेगा। अब उनको बिठाए छोड़ते हैं, वो बेचारे आजिज आ रहे होते हैं, जो ही इसीलिए आप खाना देते हैं वो फौरन गायब हो जाते हैं, हॉल आधे से ज्यादा खाली हो जाता है। तो कभी खाना पहले देके देखें, फिर देखें कितने लोगों को शौक है आपके फंक्शंस देखने का। तो शादियों में तो बहुत ही अफसोस सबसे ज्यादा यह है कि हम अपनी दावतों का भी यही हाल करते हैं, जिसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हम कोई भी टाइम रखें, जिस टाइम पे मेहमान को बुलाओगे वो उसी पे आएगा। जब हम लेट टाइम रखते हैं और लेट ही करते जाते हैं, फिर तो उसके बाद कौन किस वक्त घर जाएगा, कब सोएगा, कैसे उठेगा, वो उसकी जिम्मेदारी किस पे है। ये जो माशाल्लाह होस्ट हैं जो दावतें करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर ये भी ख्याल कर लिया करें तो कितना अच्छा हो। रात अल्लाह ने बनाई या तो सोने के लिए, या तो रात बनाई कि अल्लाह के आगे खड़े हो। हमारी रातें किस में गुजरती हैं? रात को मूवी लगाएं, रात को गपशप शुरू करें, रात को फन करना शुरू करें,
रात को किचन खुल जाएगा, रात सारी बस उसी के अंदर गुजरेगी, खाना पीना और हल्ला गुल्ला। इसके लिए तो नहीं अल्लाह ने रात बनाई है। जब ये होगा तो कौन तहज्जुद के लिए उठेगा, कौन क़यामुल लैल कर सकेगा? फजर पढ़नी मुश्किल हो जाएगी तो क़याम करना तो दूर की बात। तो इसके लिए अपनी जिंदगियों को थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल थोड़े एडजस्ट करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं उठा जा सकता। जो रात को 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, वो किस तरह उठ सकता है 3 बजे? उसको तो नींद बहुत गहरी होती है, ऊपर से शैतान ने गिरें लगाई नहीं। तो रातों को जागना और दिनों को सोना, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। या तो सो और या फिर अल्लाह के आगे खड़े हो, इसके अलावा तीसरी काम नहीं है। हमने तो बिल्कुल रातों को दिन बना दिया हुआ, दिनों को रात बना दिया हुआ। तो दूसरी चीज के कैलूला से इसके लिए हेल्प ले सकते हैं कि आप कैलूला करें दिन में थोड़ी देर। कैलूला भी ये नहीं है कि भाई पूरी दोपहर सोए ही पड़े हुए हैं तो अब उठने का नाम ही नहीं है, शाम हो गई है, मगरिब की अजानें होने वाली हैं और हमारी नींद ही नहीं खत्म हो रही। ये कैलूला नहीं होता। चंद मिनट के लिए सोना कैलूला होता है। थोड़ी देर के लिए आप बिस्तर पे अपने आप को टिकाएं। फिर ये है कि इंसान अल्लाह ताला से जब बहुत मोहब्बत करता है ना, तो वो मोहब्बत उसको जगाती है रात को। वो मोहब्बत है जो कि उठाती है उसको बिस्तर से। आप देखें, माएं जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं और रातों को बार बार उठते हैं, तो माँ उठती है कि नहीं उठती? क्या चीज उसको उठाती है? रोने दिया करे बच्चे को, रोता रहे, दूसरे कमरे में डाल आए, खुद आके सो जाए। कोई माँ ऐसा नहीं करती। क्यों? उससे मोहब्बत है उस बच्चे से। जब अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत होती है तो फिर उठना आसान हो जाता है। ये मोहब्बत जगाती है। फिर जिनको दुनिया में भी यानी किसी से इश्क मोहब्बत हो जाते हैं, वो भी कहते हैं रातों की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई। ये क्या है? इश्क की बहुत ही वो बताते हैं आफात में से। तो वो भी क्या है? रात की नींद क्यों उड़ जाती है? मोहब्बत में। तो जब अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत हो फिर आसान है। अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि रात वाले अपनी रात में इससे ज्यादा लज्जत पाते हैं जितनी खेल वालों को खेल में लज्जत मिलती है। अगर रात ना होती तो मैं दुनिया में रहना पसंद ना करता। क्यों? इसलिए कि रात की इबादत मुझे इतनी जी। चलिए, यहाँ पे सेशन का टाइम एंड हुआ। अच्छा, ये जो कैलूला की बात उन्होंने की थी ना, तो ये मैंने डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट बातें करते हैं कि इतनी इतनी ड्यूरेशन का होता है। एक ये बात बोली थी कि ये जो हमें झटका नहीं आता, जैसे हम लोग बस में ट्रेन में कहीं पे बैठे हो, एकदम से जो झटका लगता है ना नींद का, कहते हैं अगर ये भी आ जाता है ना, इससे भी आपकी वो जो कैलूला की डिमांड होती है ना पूरी होती है। फिर इसको मैंने प्रैक्टिकली खुद से तो तजुर्बा नहीं किया था, तजुर्बा हो गया था एक्सीडेंटली मेरे साथ। मतलब जैसे नहीं होता, हम लोग दोपहर में थोड़ा सा आंख लगी, एकदम बेल बजी, फौरन उठ गए, या फिर जैसे किसी बच्चे को वॉशरूम जाना है तो आप एकदम उठे। तो ये 2 दफा मेरे साथ हुआ, तो बिल्कुल झटका आया। फिर मैंने वापस आके चलो बेल दरवाजा खोल दिया, आके दोबारा सोने की कोशिश की तो नहीं नींद आई। लेकिन वो जो थी ना फ्रेशनेस, वो आ चुकी थी मेरे अंदर, वो जो दोपहर की नींद से चाहिए होती है ना, तब से मेरा बिलीफ हो गया। और मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, जहां मुझे सोता हुआ देखो मुझे उठा दो। और बस वो मेरे लिए काफी होता है कि बस एक झटका आना ना, जिसे कहते हैं ना, नींद में आपने चले जाना है, बेशक वो चंद सेकंड चंद मिनट के लिए हो। तो इवन वो जो 15-20 मिनट का भी कह लूँ ना, मेरा तो उसके ऊपर से भी बिलीफ हट गया है कि नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। झटका भी अगर आ गया ना, तो बस वो आपकी फ्रेशनेस रिस्टोर हो जाती है। तो ये मैंने करके देखा था। आप लोग का भी कोई तजुर्बा तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कैलूला कोई बहुत, मुझे हर कोई बहुत अलग तरह से बताता है ना जी। बहुत तजुर्बा है। 1 सेकंड को आंख लगती है तो फिर ठीक हो, जब उठते हैं इतने फ्रेश होते हैं, लगता है हाँ, पता नहीं कितनी देर सो के उठे हैं। है ये ना। तो बहुत तजुर्बा है मुझे। ये बिल्कुल ये होता है, ये ये तो चीज, और बड़ा हमें दूसरों को, अच्छा हाँ होता है। आंख बंद, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज है नींद ना, कि वो आपकी बॉडी को एकदम पावर दे देती है। जरा सी देर के लिए भी आप चाहे बिल्कुल। तो एकदम पता ही नहीं, रूह निकल जाती है ना बॉडी से, और वो हम्म। दोबारा आ जाती है।
हाँ एग्जैक्टली वही ना, कुछ होता है तो वाकई में इस तरह के एक्सपीरियंसेस है ना, हमें आपस में शेयर करने चाहिए ना, ताकि हमें हिम्मत मिले। अब जो 1 घंटा समझ रहा है कैलूला 1 घंटा होता है, तो वो तो उससे कम ट्राई भी नहीं करेगा ना, तो उसको लगेगा इतना तो मैंने सोना है। अब उसको पता चले नहीं यार 1 मिनट में भी हो जाता है, ठीक है, वो पावर मिल जाती है, तो फिर बंदा अटेम्प्ट ले लेगा। तो इसलिए मुझे होता है हमें एक्सपीरियंसेस जरूर जरूर शेयर करने चाहिए, जहाँ पे भी उसको हल्का नहीं रहे, उसकी वजह से कितने लोगों को फायदा हो, तो फिर आपको भी अल्लाह ताला उसका अजर देंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा पता है चलिए। कि चाइना में ना एक जगह पे एक ऑफिस में, तुम्हें पता है रिसर्च हुई थी, उन्होंने खैरुल्ला ऑफिस में शुरू किया था कि 10 मिनट का हम्म खैरुल्ला करेंगे आप, उसके बाद दोबारा से जो है ना आप ऑफिस का काम करेंगे। इससे उन्होंने कहा हम्म जितने जो जो भी लोग काम कर रहे थे ना, तो उनके वर्किंग आवर्स जो थे क्वालिटी वाले हो गए और ज्यादा बेहतर काम करने लगे वो। तो वाकई चाइना पे इम्प्लीमेंटेशन जो है नोट। ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से वाकई इसकी इम्पोर्टेंस। बहुत से स्कूलों में बच्चों के होता है कि बच्चों को दोपहर में जी थोड़ी जी, सी देर के स्कूलों में भी लिए शुरू हो गया, जो सही है, क्लास ये बिल्कुल ब्रेक सही है। होती है, हाँ वो और वो क्लास तो ब्रेक चले के उधर की अंदर बात होगी, देते लेकिन हैं। हमारे करने का क्या है। हाँ जो ये इन्होंने बताया था ना, कम खाना पीना, ये चीज है जो बड़ा मुश्किल है आजकल के फूडीज वाले जमाने में रह के करना। लेकिन ये हमें फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी क्लेम नहीं करेगा कि हम बहुत कम खाते पीते हैं, लेकिन चले ट्राई तो करें ना, क्योंकि वाकई इससे नींद ज्यादा आती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कर लें तो इंशाल्लाह जो है वो फिर नींद थोड़ी कम आएगी, है ना, होपफुली। चलिए सही, और किसी ने कोई बात करनी है? चलें ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।